So students, today we will discuss on the unit 2, extension education and development, and extension education and development, and the main topic which we will cover today is the teaching learning process and steps in extension teaching. These two are very important topic, especially from examination point of view. If we see from the examination point of view, these are very important topic, and all the steps are frequently asked in the examination. Beside examination, you also have to a very deep understanding about what are, because ultimately it is education. So how we have to learn, how we can motivate any farmers, what are different stages through which any farmer get motivated or get change their behavior. So these steps are very important. So in today's topic we will cover these 2 points. Teaching, first one is the teaching learning process. What is teaching? Teaching learning process, there are 3 things. One is teaching, second is learning, and another is process. Then what is teaching? Teaching is the process of providing situation in which the effective learning can be takes place. So teaching is a process of providing situation. Okay, providing situation in which effective learning can be takes place. So this is teaching. The ultimate purpose of teaching is not merely to inform people, but to transform them. Transformation means, when we talking about the transformation, means is the change in their behavior, behavioral component. What are these? What is this behavioral component? CASA and other attributes. CASA, what is CASA? Knowledge, attitude, skills, action, understanding, goals, confidence. These are things. When we're talking about the transformation, okay, transformation in what? Change in the behavioral component. If the learner has not learned, the teacher has not taught. Okay. Teaching is not filling a bucket. It is lightening the lamp. Teaching is intentional, purposeful process, and effective teaching is done according to the design. So teaching always be planned. It is never just trial and error. This is not this kind of practice. Teaching and effective teaching is always planned, because what is the outcome of teaching? It is just learning. If the learners are not learned, then teachers, it means teachers not taught. Then good teaching therefore requires careful planning of content, procedure, methods and techniques. And good teaching is essentially good communication, and good communication requires sympathetic sharing. Sympathetic sharing, actually there is one word sympathy and another word is empathy. Okay, in next you have just note down this sympathy and empathy. If today I will got time, I will explain what is the sympathy and what is the empathy. Empathy, especially empathy and sympathy, these both terms are asked in the question, especially in the fill in the blanks or definition point of view. Okay. Then second, in teaching learning process, one is teaching and another is learning. What is learning? Learning is the process by which a person becomes changed in his behavior through self-activity. Okay, change in the behavior through self-activity. It is called learning. When you learn anything, it means you get change yourself through your own efforts. Learning is the process of progressive behavior adaptation. What it means? Progressive behavior adaptation. Progressive means when we at one point of time we are not using any technology. At one point of time we are not undergoing this kind of online teaching process, online teaching learning process. But today we are acquainted or adapted for this online teaching. Okay, so this is the progressive behavioral adaptation. Some teachers also have some their own problems regarding this teaching learning process, and you students also have a lot of problems regarding networks, regarding availability of smartphones, many things. Okay, but slowly teachers also perform better, and you also acquainted and adapted to this teaching process, this online method of teaching. So this is progressive behavioral adaptation. Likewise, farmers also has to go through this progressive behavioral adaptation. And behavioral, what it means, behavioral adaptation, it is nothing, just transformation in all the behavioral components. What are these? CASAs. CASA means knowledge is attitude skills. याद रखना है इस CASA को, क्योंकि कई जगह पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है.
नहीं होगा तो मुझसे पूछ लिया करना, ठीक है। लर्निंग इज समथिंग दैट टेक्स प्लेस विद इन द लर्न, it takes place within the individual when he feels a need, strives for fulfilling it, and experience satisfaction with the fruits of his labor. Learning is the goal of teaching. Okay, we must, however, avoid any artificial separation since teaching and learning are really one process. They are, so to say, the observed and the reverse of the same coin. We can symbolize this interaction as teaching and learning process. So learning is the outcome of teaching. If there is no learning, it means there is no teaching. Okay, and what is learning? Learning is the change in the behavioral component, means transformation in the behavioral component, means the knowledge, skill, attitude, and other attributes. Okay, so through their own efforts, learning by doing. There is one concept, na, learning by doing. This is then extension education process. There is one keywords like हम लोग सिनोनिम बोलते हैं ना किसी चीज के बारे में कि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं. शॉर्टर एक वर्ड है, SOTER. सभी लोग इसको लिख लो, मैंने इसमें लिखा नहीं है बट यू हैव टू राइट, आपको याद रहेगा. शॉर्टर स्पेशली पूछा जाता है कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस है इसमें कितने स्टेप्स होते हैं. ओके, और ये स्टेप्स कैसे याद होंगे आप लोग. बेसिकली एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस एंड स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग में, क्योंकि ये दोनों ही स्टेप्स हैं तो आप लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं. अभी भले आप लोग को बहुत इजी लगेगा लेकिन आगे जाके फ्यूचर विल गेट कंफ्यूज. तो एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया जाता है कि आपको याद रहे. ठीक है, जैसे एक है शॉर्टर SOTER, इसको नोट डाउन कर लें. ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है, इट इज सिचुएशन और प्रॉब्लम. व्हाट इज द एग्जिस्टिंग सिचुएशन or problem existed in any given situation. Then based on that problem we have to decide our objectives and solutions. Objectives क्या बना दिया कि नहीं, to promote the milk production of this dairy farm or to promote the milk production of this region, indigenous cattle of this इस तरह के objectives हो सकते हैं. उसके बाद हम solution decide करते हैं कि अच्छा मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करना है. हमने ऑब्जेक्टिव डिजाइन कर दिया कि नहीं हमें मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, क्या करना होगा. तो हम देखते हैं कि अच्छा ठीक है यहाँ मिनरल मिक्सचर की कमी, ये लोग मिनरल मिक्सचर नहीं देते हैं, डिफिशियंट है, यहाँ का जो सॉइल है कंटेंट है वो डिफिशियंट है मिनरल्स में. तो हम क्या करते हैं, उनको मिनरल मिक्सचर प्रोवाइड करते हैं या एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर प्रोवाइड करते हैं. ये हमारा सोल्यूशन हो गया. ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, टू प्रमोट द टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन बाय 3-4 मे बी ऑब्जेक्टिव हम अपना डिजाइन कर सकते हैं. और उस ऑब्जेक्टिव केस हम कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन क्या होगा. जब हमने ऑलरेडी सिचुएशन की एनालिसिस की थी या प्रॉब्लम डिसाइड किया था कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है, यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम है, तो हमने उसके लिए आंसर क्या किया, सॉल्यूशन क्या लिया कि हाँ यहाँ का जो सॉइल है वो डिफिशियंट है, तो हम वहाँ पे मिल्क जो मिनरल मिक्सचर है वो हम वहाँ पे सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे. ये सॉल्यूशन हो गया. ओके, तो सेकेंड स्टेप है ऑब्जेक्टिव एंड सॉल्यूशन. थर्ड वन इज द टीचिंग प्लान ऑफ द वर्क. अब टीचिंग कराते हैं. यहाँ पे टीचिंग का क्या मतलब हुआ, हम लोगों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं. पढ़ाने का मतलब उनका बिहेवियर चेंज करते हैं. बिहेवियर चेंज का क्या मतलब हुआ कि हो सकता है फार्मर्स को, हमने कहा ना नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड अदर एट्रीब्यूट्स, तो हम हो सकता है फार्मर्स को एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मिनरल मिक्सचर के बारे में पता ही ना हो, अवेयर ही ना हो, तो हम जाके उनको बताएंगे कि मिनरल मिक्सचर नाम की चीज कोई चीज एग्जिस्ट करती है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं. ठीक है, वो कैसे काम करता है, उनको उनकी लैंग्वेज समझाएंगे कि कोई मिनरल मिक्सचर किस तरह से उनका जो लाइफ स्टॉक है उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकता है. हम उनको अंडरस्टैंडिंग कराएंगे, उनको समझाएंगे. जब ये चीजें वो अंडरस्टैंड करेंगे, कॉम्प्रिहेंड हो जाएंगे, तो उनमें बिहेवियरल चेंज आएगा कि नहीं वो अभी तक यूज नहीं करते थे लेकिन अब वो उसको यूज करेंगे, तो ये उनका बिहेवियरल कंपोनेंट का चेंज होगा. ओके, दिस इज टीचिंग. उसके बाद इवेल्युएशन, वहां पर आया ना प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन. ओके, तो हम यहाँ पर इवेल्युएट करते हैं कि हमने कितना ऑब्जेक्टिव अचीव किया. ठीक है, हम मिल्क प्रोडक्शन को 2-fold इंक्रीज करना चाहते थे एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, तो अभी हम कितने पे हैं. ठीक है, पता चला कि नहीं अभी जो पहले हर एनिमल 3 लीटर देता था और आज के समय वो केवल 6.5 लीटर 3 लीटर देता था, मान लो कि 4.5 लीटर दे रहा है, तो वो अभी केवल 50% इंप्रूव हुआ है. 100% इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो अभी 50% की लैगिंग है. तो ये इवेल्युएशन से पता चलेगा कि हमने कितना ऑब्जेक्टिव अचीव किया हुआ है. ठीक है, अच्छा अगर 50% हम इंप्रूव नहीं कर पाए तो उसके रीजंस हो सकते हैं. हो सकता है फार्मर्स, हम चाहते थे कि सभी का एटीट्यूड चेंज हो जाए, तो उनके कुछ कांस्टेंट रहेंगे, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे. हो सकता है वो इलिटरेट हो सकता है कि हम उनको उनकी लैंग्वेज में समझा पा रहे, हमारा एक्सटेंशन प्रोग्राम इतना एफिशिएंट ना हो सकता है कि हम बड़ा ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करें. अगर हम साइंटिस्ट होते हैं क्या होता है ना कि हम बहुत पढ़े लिखे होते हैं तो हम वैसे ही बोलते हैं, खड़ी बात समझा के बोल देते हैं.
ठीक है, अगली बार हमको ये समझ में आएगा नहीं, एक लोकल लीडर को इन्वॉल्व कर दिया जाए, एक प्रोग्रेसिव फार्मर्स को इन्वॉल्व कर दिया, एक कम्युनिकेटर को, एक ऐसे लोकल पर्सन को इन्वॉल्व कर दिया जाए जो उनके बीच का हो। पहले हम उसको इम्प्रूव कर देते हैं और उसके थ्रू और जो दूसरे हैं उनको हम उनके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं से हम ज्यादा अप्रोचेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे फीडबैक निकल गया और इस फीडबैक को हम रिकंसिडरेशन स्टेज में लेके जाएंगे जब हम नेक्स्ट टाइम एक्सटेंशन प्लान करेंगे उस एरिया, उस जियोग्राफिकल एरिया के लिए, तो हम उसको रिकंसिडर करेंगे कि नहीं, आपकी हम अपने एक्सटेंशन प्रोग्राम में ये चीजों को कंसिडर करेंगे, तो दैट इज रिकंसिडरेशन, दैट इज द लास्ट स्टेज। ओके, सो दिस इज सॉर्टर, SOTER, इस चीज को याद रखना। I'll have to mute their mic, please. Then first stage is analysis of situation. This requires a large amount of facts about all aspects of the situation. We are in this stage, we have to just collecting fact, different kind of facts regarding geographical area, regarding the habits, regarding norms, values, food, feeding habits, behavioral components of the our target people or that community. We are gathering all kinds of these facts. The people, their interest, education, कितने पढ़े लिखे हैं, what they think they need, their social customs, habits and programs. हम ये facts वहां से एक्यूमुलेट करते हैं। इस फैक्ट के बेसिस पे हम दो चीजें डिसाइड करते हैं। पहला ये कि वहां का सिचुएशन कैसा है, ठीक है। जैसे फैक्ट हम ये भी देख सकते हैं, अगर मिनरल मिक्सचर की बात करें, जियोग्राफिकल एरिया, सॉइल कंटेंट के उस रीजन से अगर हम फैक्ट निकाले कि हाँ भी यहाँ का जो सॉइल है वो मिनरल डिफिशियंट है, तो हमने एक फैक्ट निकाला ना कि हाँ मिनरल डिफिशियंट है, इसलिए यहाँ पर मिनरल की प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पर मिनरल मिक्सचर देना चाहिए। ठीक है, तो हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं उसके बेसिस पे जो हमने फैक्ट आइडेंटिफाई किया। इसके अलावा वहां का कस्टम कहता है, वहां की कम्युनिटी किस तरह से हम किस तरह ढंग से उसको अप्रोच करें कि वो इजिली कन्वर्ट हो सके, उसका बिहेवियर बहुत इजिली कन्वर्ट कर सके, हमें आसानी है उसका बिहेवियर कंपोनेंट चेंज करने में। ओके, तो फैक्ट शेप इनटू द प्रॉब्लम, इसमें से जो कुछ फैक्ट्स हैं उनको हम प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करते हैं कि नहीं ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन कम है तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। सॉइल कंटेंट में हम एनालिसिस करते हैं, सॉइल टेस्टिंग करते हैं, तो पता चलता है कि हाँ ठीक है, मिनरल कंटेंट की कमी है, तो मिनरल मिक्सचर हमें देना चाहिए उनको। इस तरह से तो हम प्रॉब्लम्स वगैरह भी यहीं से डिजाइन करते हैं। एंड व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी, एक्चुअली नीड का डिफिनेशन मैंने आपको आगे पढ़ाना है, बट नीड क्या होती है, आवश्यकता हम कहते हैं कि हमें इस चीज की आवश्यकता है। ठीक है, देन व्हाट इज नीड, नीड का बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस होता है, इट इज द गैप बिटवीन व्हाट इज एंड व्हाट आउट टू बी, क्या है और क्या होना चाहिए, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है इसी को नीड बोलते हैं। ओके, तो हमें उनके नीड भी समझनी पड़ती है, इन फैक्ट्स के बेसिस पे हम उनकी नीड समझ पाएंगे कि नहीं वो किस पोजीशन पे हैं और उनको कहां पर हम ले जा सकते हैं, वो जो डिफरेंस है ना वो नीड होगी। और नीड दो तरह की होती है, फेल्ट अनफेल्ट, आगे के चैप्टर्स में आगे आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा इस बारे में। देन सेकंड स्टेप इज डिसाइडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव। It is necessary to distinguish between levels of objective by the separating the general objective from the specific and working objective। यहाँ पर तीन वर्ड है, जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड वर्किंग ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, जैसे कि हमें इस रीजन का मिल्क प्रोडक्शन इनहांस करना है, ठीक है, ओके। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हम ये कह सकते हैं टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन बाय 2-fold, ये बड़ा स्पेसिफिक सा हो गया। और वर्किंग ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, वर्किंग ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि जिसपे हमको काम करना है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम एक ऑब्जेक्टिव करेंगे भाई, वो हमें मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, ठीक है, मिनरल मिक्सचर हम प्रोवाइड करना है, यहाँ सॉल्यूशन भी देना होता है ना, तो ठीक है, तो हम एक टारगेट कर लेंगे, इतने लिमिटेड पीरियड में हमें इतने लोगों को मिनरल मिक्सचर प्रोवाइड करना और टाइमली बेसिस पे प्रोवाइड करना, उसको फॉलो अप करना, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉलो अप। हम चूंकि हमारा चाहे केस हो, क्लिनिकल केसेस हो, चाहे हमारे एक्सटेंशन प्रोग्राम्स हो, बहुत सी लैगिंग इसमें होती है कि फॉलो अप का प्रॉब्लम होता है, लोग फॉलो अप को ध्यान नहीं देते। हम एक बार किसी एरिया में गए, कैंप किया, बताओ चले, हम फॉलो अप नहीं करते। यदि हम उनको फॉलो अप करना शुरू कर दें या हमें इतनी एमेनिटीज मिल जाए कि हमको फॉलो अप करना शुरू करें, तो कहीं ना कहीं से जो हमने एक होता है लर्निंग का रीइंफोर्समेंट होना शुरू हो जाता है अगर हम उनको फॉलो अप करते हैं। और एक्सटेंशन प्रॉब्लम में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि हम लर्निंग का रीइंफोर्समेंट नहीं कर रहे। बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, फंड का प्रॉब्लम होता है, बजट का प्रॉब्लम होता है, मैन पावर नहीं होता, बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। The planning process must enable the people to select a limited number of problems and to state their objective clearly.
the solution to be offered must give in satisfaction. जो हम solution provide कर रहे हैं उससे satisfaction होना चाहिए. इसलिए वो जो आपने fact का analysis किया था ना, तो वहां से आप solution तो निकालेंगे कि नहीं क्या करें कि इनका हम problem solve कर सकें. यहाँ से इनको satisfaction कैसे होगा जब उनका problem sort out कर रहे हैं. ठीक है. Objectives should express the behavioral change in the people as well as the economic, social and okay. So this is the objective. यहाँ पर हम objective को decide कर लेते हैं basically. Then third one is the teaching. और teaching plan था ना वहाँ पे. Then what is teaching? This involves choosing the content. देखो दो चीजें होती हैं. हमें टारगेट पीपल को विच व्हाट कंटेंट वी हैव टू प्रोवाइड देम. हमें उनको पढ़ाना क्या है, उन्हें क्या समझाना, उन्हें किस चीज की लर्निंग करानी है, ये बहुत ही स्पेसिफाइड होना चाहिए और इसको बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए. हमने कहा ना टीचिंग को हमेशा प्लान होना चाहिए. हिट एंड ट्रायल का मेथड नहीं चलता यहाँ पे. तो टीचिंग हमेशा प्लान, हमें पता होना चाहिए. हमने एनालिसिस का सिचुएशन किया, प्रॉब्लम में किया, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो हम उन्हें पढ़ाएंगे या जिसके बारे में उनको अवेयर कराएंगे तो उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा. तो कंटेंट बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, पहली बात. दूसरी चीज कि इन व्हाट वे वी हैव टू डिलीवर दैट कंटेंट टू दिस बेनिफिशियरी. सो दैट इज मेथड्स एंड टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन. हाउ वी हैव टू कम्युनिकेट टू दोज पीपल with what amenities, what infrastructure we have required, such that our learning process we can make more effectively, we can deliver more effective teaching. Okay, so यहाँ पर दो चीजें. पहला कंटेंट है कि हमें उनको पढ़ाना क्या है, एंड अनदर थिंग दैट इज मेथड एंड टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन. ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कंटेंट के मामले में हम ये कह सकते हैं कि भाई हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई सॉल्यूशन है. अब मिनरल मिक्सचर क्या होता है, क्या क्या कैसे बेनिफिट करेगा, हम इसको क्यों देना चाहते हैं, हम बताएंगे ना वहां पे कि हाँ कि भाई ठीक है सॉइल कंटेंट आपका डिफिशिएंट है, टेस्टिंग करने पे ऐसा ऐसा है. ये चीजें विश्वसनीयता, रेपो क्रिएट करती है वहां पे. ओके, तो जो कंटेंट है बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा उसके बेस पे होना चाहिए. देन मेथड एंड टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन में कि हम उस चीज को डिलीवर कैसे करें. हमारा एक मेथड ये भी हो सकता है कि हम डायरेक्टली जाकर उनसे डायलॉग करें, डायलॉग एस्टेब्लिश करें. ऑल स्टूडेंट एक्चुअली यहाँ पर केवल 10 मिनट बचा हुआ है, तो जैसे ही सेशन खत्म होगा वैसे आप लोग दोबारा सेम आईडी और पासवर्ड के साथ एंटर कर जाइएगा. आई थिंक ये थोड़ा सा भी 10-15 मिनट चलेगा अभी सेशन. ठीक है, 12 बजे तक. ओके, तो एक तो ये हो सकता है कि हम डायरेक्टली उनको जाके कम्युनिकेट करें, और दूसरा ये हो सकता है कि हम वहां के किसी लोकल लीडर को के थ्रू जाएं. ठीक है, वहां का जो प्रधान है या वहां का कोई अगर रिस्पेक्टेबल पर्सन है, हम उसके थ्रू उनको कांटेक्ट करें. यदि हम उनके थ्रू कांटेक्ट करते हैं तो हमारा काम और ज्यादा आसान हो जाएगा. देखो इफेक्ट क्या पड़ता है दोनों में, यदि हम डायरेक्टली जाकर उनको कम्युनिकेट करते हैं या किसी लोकल पर्सन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, दोनों फर्क. एक हमारा है ना प्रिंसिपल्स ऑफ लोकल लीडरशिप या प्रिंसिपल ये है ना वहां पे. बेसिकली इसका पर्पज ये होता है कि जो लोकल लीडर होता है वो वहां की जो हैबिट्स है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग उनको समझता है. ठीक है, अगर आप जाते हैं और वहां पर कोई फार्मर्स आप उसकी बिल्कुल खड़ी हिंदी में या बिल्कुल इंग्लिश में आपने डायलॉग करना शुरू कर दिया, हो सकता है आपकी बात उसको समझ में ना आए, क्योंकि आपको उसे ये लगेगा कि ये हमारे बीच का आदमी नहीं है. ठीक है, वो हमारे जैसा नहीं है. वो सीधे बोल देंगे अरे ये तो एसी में बैठने वाला इंसान है, वो हमारी प्रॉब्लम क्या आया है बस कम्युनिकेट करके चला जाएगा. ठीक है, लेक्चर देके चला जाएगा, वो अपने घर चले जाएंगे मिठाई लेकर. लेकिन यदि उनके बीच का कोई आदमी होगा, फॉर एग्जाम्पल यदि 10 लोगों के बीच में यदि कोई प्रोग्रेसिव फार्मर है, ठीक है, तो प्रोग्रेसिव फार्मर का उनके बीच में एक रेपो होगा. रेपो इस तरह से होगा कि भाई उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो तो उससे पूछने जा रहे होंगे. ठीक है, तो जब वो प्रोग्रेसिव फार्मर को जब हम इजिली मॉडिफाई कर देंगे तो उसको देख करके वो भी मॉडिफाई होना शुरू हो जाएंगे. अगर हम उस फार्मर्स को ये सिखा दें कि भाई ठीक है मिनरल मिक्सचर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करें, और अगर हम उसके फॉर्म पे उसको इम्प्लीमेंट करा दें, तो अगर वो यूज करना शुरू कर देता तो उसको देखते देखते क्या होता है, मतलब होता है ना, सीइंग इज बिलीविंग, देख करके विश्वास करना. सीइंग इज बिलीविंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें. तो जब उसके यहाँ देखेंगे हाँ ये मिनरल मिक्सचर को यूज कर और मिल्क प्रोडक्शन बढ़ गया, तो आसपास के जो लोग हैं, क्योंकि वो उनके बीच का ही है ना, उनके जैसा ही है वो, तो जब वो चेंज हो जाएगा तो उसको देख के बहुत से लोग बदलना शुरू हो जाएंगे. धीरे 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 वो भी इन चीजों के लिए अडॉप्ट कर जाएंगे. ओके, दिस इज टीचिंग and this is evaluation. This will determine to what extent objective has been reached. This will also be a test of how accurately and clearly the objective have been stated.
The process of evaluation may be simple and informal, and it may be formal and very complex. Ultimately, evaluation में हम क्या करते हैं? Evaluation में हम यही करते हैं कि कितना हमने ऑब्जेक्टिव जो डिसाइड किया था, तो हमने कितना अचीव किया है. जब हम इवेल्युएशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने जो कितना अचीव करना था और हमने कितना अचीव किया है, नहीं किया तो उसके क्या कारण हो सकते हैं. वाई वी आर नॉट, अगर हमने अचीव नहीं किया तो क्या रीजन थे जिसके थ्रू हम उनको अचीव नहीं कर पाए और कैसे इसको फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है. ये चीजें इवेल्युएशन से निकल के आती हैं. इसलिए मैंने कहा ना, प्रिवेंट द स्टैग्नेशन. इवेल्युएशन एक ऐसा स्टेज है जो किसी भी चीज की स्टैग्नेशन को रोकता है. ठीक है. Then reconsideration. Reconsideration का मैंने बताया था. This step consists of a review of previous efforts and result which reveal a new situation. Reconsideration का मतलब ये होता है कि हमने जो पॉइंट सॉर्ट आउट किए हैं, किसमें, इवेल्युएशन के समय में स्पेशली हमने उनको, तो हमें उनको रिकंसिडर करना पड़ता है. रिकंसिडर का मतलब क्या है कि जो हम नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे उस एरिया स्पेसिफिक के लिए कि हाँ ठीक है, हम 2 गुना करना चाहते थे, 3 गुना बढ़ाना चाहते मिल्क प्रोडक्शन, लेकिन हमारा उतना नहीं बढ़ पाया है. तो हम वहां पे जब नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम करेंगे कि हाँ हमें इसको 3 टाइम या 2 टाइम बढ़ाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें किन किन चीजों को, ठीक है, पहली बार आपने लोकल लीडर को इन्वॉल्व नहीं किया तो आप उसको रिकंसिडर करेंगे कि इस टाइम किसी हमें की कम्युनिकेटर या लोकल लीडर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में, ताकि हमारे प्रोग्राम की इफिशिएंसी या इफेक्टिविटी बढ़ जाए. Okay, so this is reconsideration. Then another point in today's lecture, it is the steps in extension teaching. पहले वाला क्या था? पहला था extension education process. एक चीज जो extension education process का शॉर्टर जिसको बोलते हैं, वो जेपी लिगन ने दिया था. जो दूसरा steps in extension teaching, अब टीचिंग के क्या कौन कौन से स्टेप्स हैं, वो वहां पर एजुकेशन हो रहा था. एजुकेशन एक ब्रॉड वर्ड हो जाता है, ठीक है, तो वहां के वो सारे वर्ड्स थे एजुकेशन. अब जो एक्सटेंशन टीचिंग है उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, ये विल्सन एंड गैलप ने दिया था. इसमें 6 स्टेप होते हैं. जैसे वहां पे शॉर्टर था SOTER था, वैसे यहाँ पर एडकास्ट है AIDCAS, एडकास्ट. इसके 6 स्टेप्स होते हैं. ओके, पहला अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन एंड सेटिस्फेक्शन. अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पहला ए है एडकास्ट का, सीधे वो एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आएगा कि जो पहला ए वो किस चीज के लिए होता है. जैसे वहां पे ऑप्शन रहेगा, अटेंशन है, अवेयरनेस है, ठीक है, एडॉप्शन है, जिस काइंड ऑफ कुछ भी हो सकता है. तो ये चीज याद रखें, अटेंशन है यहाँ पे, ठीक है, अवेयरनेस नहीं है. बहुत से लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं. जो पहला स्टेप है अटेंशन, दिस इज द फर्स्ट टास्क ऑफ एक्सटेंशन वर्क इज टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ द लर्नर टू द न्यू एंड बेटर. अब देखो वहां पर टीचिंग थर्ड स्टेप है. इस टीचिंग में कितने स्टेप्स हैं वो यहाँ पर बताया जाता है. अकॉर्डिंग टू विल्सन गैलप उसके 6 स्टेप्स हैं. पहला है अटेंशन. द फर्स्ट टास्क of the extension work is to attract attention of the learner to the new and better ideas. Farmer are to be made aware of the improvement. Means हमें awareness create करना ताकि हम लोगों को अट्रैक्ट कर सके अपने आइडिया के बारे में. इसमें स्पेशली जो मास मीडिया मेथड्स होते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविजन, एग्जीबिशन, इसके थ्रू हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं ना कि हाँ भाई ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करी, ऐसा कोई आइडिया है जो एग्जिस्ट कर रहा है. तो मास मीडिया मेथड इसमें बहुत हेल्प करते हैं. इसके अलावा सेकेंड स्टेप इज द इंटरेस्ट. इंटरेस्ट क्या होता है? यदि एक बार जब कोई लर्नर है, यदि वो अटेंशन आ गया, मीन्स अब वो किसी बारे में अवेयर हो गया, तो वो उसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी चाहता है कि हाँ भाई अगर कोई टेक्नोलॉजी एक्सिस्ट करे तो उसके बारे में वो और जानना चाहता है. ठीक है, ये कैसे होगा? जैसे फॉर मिनरल मिक्सचर का एग्जांपल ले लेते हैं आज के डेट में. तो पहले हमने बताया कि मिनरल मिक्सचर हम ये एक पोस्टर बहुत बड़ा सा छपवाएंगे कि मिनरल मिक्सचर अपनाएं और मिल्क प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ाएं. ठीक है, इस तरह यदि हम कहीं गाँव में बंटवा दें तो भाई लोग उसके बारे में जानना चाहेंगे ना, तो इंटरेस्ट क्रिएट होगा. तो हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और ज्यादा इंफॉर्मेशन वो लेना चाहिए कि हाँ भी मिनरल मिक्सचर है तो क्या रेट है, क्या क्या होता है, क्यों देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, वो उसके बारे में और क्वेरी करेगा. तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट. उसके भीतर एक इंटरेस्ट अराउज हुआ तभी तो ज्यादा क्वेश्चन कर रहा है. इसमें बेसिकली जो पर्सनल कॉन्टेक्ट मेथड होते हैं ऑफ द एक्सटेंशन, जैसे फॉर्म पब्लिकेशन, रेडियो, टेलीविजन, इसके थ्रू इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है. थर्ड वन इज द डिजायर. द डिजायर इज द कंसर्न with the continuing learner's interest in the idea until
that interest become a desire or motivating force. Okay, पहली बार उसने इंटरेस्ट क्रिएट किया था, उसे थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए आखिर क्या है ये नई टेक्नोलॉजी है तो है क्या, ठीक है, इसके बारे में जानना चाह रहा था। डिजायर का क्या मतलब होता है, डिजायर अब एक मोटिवेटिंग फोर्स क्रिएट होगा उसके भीतर से। देखो अब यहाँ से क्या है, उसमें एक चेंज आने की शुरुआत हो चुकी है, इसको डिफ्रीजिंग फेज बोला जाता है। बिहेवियरल कंपोनेंट का जो डिफ्रीजिंग है वो डिजायर को बोला जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मोटिवेटिंग फोर्स, ठीक है, अब वो सेटिस्फाइड हो गया कि अच्छा ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको अगर हम इतने से देते हैं तो बहुत सस्ती भी होगी और हमारा मिल्क प्रोडक्शन 10 टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है, जैसा ही कहा गया है। ओके, तो धीरे धीरे भीतर से उसके भीतर एक मोटिवेटिंग फोर्स क्रिएट होगा कि नहीं हमें इस चीज को अडॉप्ट करना चाहिए। एक मेंटल चेंज आया पहले कि हाँ इसको अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हुआ कि नहीं कि करना चाहिए। तो इसके लिए भी रेगुलर रीइंफोर्सिंग की जरूरत पड़ती है, एक्सटेंशन वर्कर को रेगुलर से समझाना पड़ता है, मतलब फॉलो, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने आइडिया दे दिया तो उसको छोड़ना नहीं है, रेगुलर जाकर समझाए कि हाँ भाई ये लीजिए और इसको, जब उसको रेगुलर उसके एग्जाम्पल्स दिखाएंगे, उसका आउटकम दिखाएंगे, देखिए कि फला ने इसको यूज किया और उसका मिल्क प्रोडक्शन इतना टाइम बढ़ गया, तो वो अपना उसके भीतर एक मोटिवेटिंग फोर्स क्रिएट होगा जो उसके बिहेवियरल कंपोनेंट को चेंज करेगा। जैसे फील्ड विजिट हो गया, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, फॉर्म पब्लिकेशन हो गया, ये क्या बताएगा, रिजल्ट दिखाएगा, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन कि हाँ भाई उन्होंने इस चीज टेक्नोलॉजी को अपनाया और देखिए इतना टाइम उनका प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है। तो जब उसके सामने वो बिलीव करना शुरू करेगा तो एक मोटिवेटिंग फोर्स क्रिएट होगा जो कि उसके बिहेवियरल कंपोनेंट को चेंज करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। इस स्टेज को डिफ्रीजिंग ऑफ आइडियाज, डिफ्रीजिंग ऑफ बिहेवियरल कंपोनेंट बोला जाता है। डिफ्रीजिंग समझ रहे हो, आइस क्यूब होता है उसको आप बाहर निकाल दो, धीरे डिफ्रीज होना शुरू हो जाता है। ओके, देन कन्विक्शन, नेक्स्ट स्टेप इज द कन्विक्शन। इन दिस स्टेप लर्नर नो व्हाट एक्शन इज नेसेसरी एंड जस्ट हाउ टू टेक दैट। अब कन्विक्शन में क्या होता है कि जो लर्नर है ना, मिडल मिक्सचर को यूज करना शुरू कर देता है। अभी तक तो थ्योरेटिकली था कि भाई ऐसे यूज करना है, ऐसे यूज करना है, अभी सब थ्योरेटिकली चल रहा था, उसने मोटिवेट कर लिया कि अब इसको यूज करना है, बिहेवियरल कंपोनेंट का स्टार्ट हो गया चेंज होना। तो यहाँ पर क्या करेगा, कन्विक्शन में क्या करेगा, अब उसको यूज करना, प्रैक्टिस में लाना शुरू करेगा। तो उसके सामने दुनिया भर की प्रॉब्लम है, अच्छा कितना देना है, 50 ग्राम पर डे देना, सुबह दें शाम को दें, खाली पेट दे दें, दुनिया भर की, तब उसके सामने क्वेश्चन आएंगे ना कि भाई कैसे दें उसको, ठीक है, चारे में दे दे, रोटी में दे, दुनिया भर के। अभी आप क्लिनिक पे जाओ लोग इसी तरह आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, दवाई कैसे देनी है, लाइकवाइज मिनरल मिक्सचर कैसे देना है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करना है, कैसे यूज करना है,